Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, ma'am. good Good afternoon, ma'am. afternoon. Good Good afternoon, afternoon, everybody. ma'am. हाँ चलो. Yesterday we were doing debentures. Debentures are the instrument through which company can raise capital from the public, and company has to give a fixed rate of interest to the debenture holders. Okay, yesterday we saw the merits and features, of course, of the debentures, and I had told you to see the limitations or the disadvantages of debentures on your own. You have to do the limitations or the disadvantages of debentures on your own. Let's see the types of debentures. Several types of debentures are there. After seeing the types of the debentures, we will see the differences between shares and debentures. Okay, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. So many types of debentures are there in your NCERT book. You can see at page number 196 in my page, in my NCERT book. In my old NCERT book, types of debentures are given at page number 196. ठीक है, तो तुम्हारी बुक में देख लो कि कौन सा पेज नंबर है. This topic is given in box. It is not given in an open area. In fact, types of 199. debentures 199. Okay, at page number 199 in the box, I think in a box, types of debentures are given. Listen carefully the meaning of all that. इन सबका डिटेल, इन सबका डेफिनेशन तुमको मिल जाएगा. पहले हम लोग डिबेंचर्स का टाइप्स देख लेते हैं. ठीक है, टाइप्स इसमें देख लेते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज द सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन केयरफुली. Those who want to get regular supply of money in form of interest from the company, they must buy debentures of the company. ठीक है, those who want to take risk, they can buy equity share. जैसे अगर मुझे कहा जाए तो मैं शेयर परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ. कारण है, शेयर पर, इक्विटी शेयर पर मुझे तभी फायदा मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट हो. ठीक है, कंपनी को जब नुकसान होगा तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा. So if I have a courage to bear the losses, then only I should buy equity shares. कंपनी का फायदा मेरा फायदा, कंपनी का नुकसान मेरा नुकसान. अगर मैं नुकसान सहने के लिए तैयार हूं तब मुझे इक्विटी शेयर बाय करना चाहिए, तब मुझे इक्विटी शेयर खरीदना चाहिए. ठीक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, then I should buy debentures. I should buy debentures of the company. Why? Because even in case of loss, even in a situation of loss, I will get dividend. I will get my money back with an interest rate. So people who do not want to take any type of risk, they should buy debentures of the company. ठीक है, तो डिबेंचर में ये फायदा होता है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, डिबेंचर्स होल्डर्स विल ऑलवेज गेट देयर डिविडेंड. उनको हमेशा पैसा मिलता है. ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया है डिबेंचर्स के बारे में बच्चों. लेकिन डिबेंचर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. बहुत सारे टाइप्स में से 4 टाइप दिया हुआ है. इसको पहले हम लोग देख लेते हैं. First is the secured and unsecured debentures. Secured and unsecured debentures. Secured debentures are such which create a charge on the asset of the company. Mortgaging the asset of the company. मतलब कि ऐसा होता है कि कंपनी जब हमसे पैसे लेती है तो बदले में कुछ सिक्योरिटी रखती है, कुछ मॉर्टगेज रखती है.
In case of losses, if company is not in the condition to pay back my money, then in that case I can bid the asset of the company. I can sell the asset of the company. In that way I can arrange my money back. I can get my money back. That is called the secured debentures. जब मेरे पैसे डिवेंचर के फॉर्म में secured इसलिए होंगे क्योंकि अगर कंपनी बिक जाती है, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और कंपनी इस कंडीशन में नहीं होती है कि मुझे पैसे दे सके, तो कंपनी के का जो एसेट होता है वो बेच करके कंपनी मुझे पैसे चुका देगी. ठीक है. सो माई मनी इज सेक्योर्ड. माई मनी इज सेक्योर्ड. दैट काइंड ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड सेक्योर्ड डिबेंचर. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, unsecured debentures do not carry any charge or security on the asset of the company. ऐसा होता है कि वैसे भी डिबेंचर्स होते हैं जिसके बदले में कंपनी कुछ भी एसेट मॉर्टगेज नहीं रखती है. कंपनी अगर बिक जाती है, बंद हो जाती है, तो मुझे पैसे नहीं भी मिल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अनसेक्योर्ड डिबेंचर. दैट इज कॉल्ड अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स. बट डिबेंचर होल्डर्स आर इन अ सेफ position as compared to the equity shareholder. Listen, once again I am repeating this very important feature. Debenture holders get their profit before the equity shareholders. जो डिबेंचर्स खरीदते हैं उनको पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरेटिवली पहले मिलता है. ठीक है. और हाँ, अगर बहुत नुकसान होता है तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को पैसे नहीं भी मिल सकते हैं. उनके पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को पैसे मिल जाते हैं एसेट को नीलाम करके, एसेट को सेल करके. बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर तुम हो तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारी कंपनी को नुकसान हुआ तो. ठीक है. लेकिन मैं सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूँ, तो कंपनी को अगर नुकसान होता है तो कंपनी का एसेट सेल करके वो कंपनी मुझे पैसे चुका देगी. मुझे पैसे चुकाने के बाद जो पैसे बचे खुचे हैं उसके बाद अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को मिलता है, वरना उनको नहीं भी मिल सकता है. ठीक है. तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर के पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को अपने पैसे बाय बैक रिटर्न हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ एक्सट्रीम लॉसेस, इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी. They will not get a single amount of money in a situation of extreme loss of the company. किनको? इक्विटी शेयर होल्डर को. तो सबसे ज्यादा नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर का, फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर का, फिर सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर का. ठीक है. This is the first. तो secured debenture holders means when companies sell their asset to give money to the debenture holder, that is called secured debenture holder, secured debentures. लेकिन एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, उसमें एसेट थोड़ा भी नहीं रखा जाता है मॉर्टगेज के रूप में. कंपनी को अगर नुकसान होता है तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को भी नुकसान झेलना पड़ता है. कुछ भी हो, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, secured हो या unsecured डिबेंचर हो, these two type of debenture holders are safe. They are safe as compared to the equity shareholders. ठीक है. Second, registered and bearer debenture holder. Registered and bearer. Registered debenture means when in that certificate, in that paper of debentures, name of the particular debenture holder is mentioned. जैसे कि अगर क्या कहते हैं, शिवम डिबेंचर होल्डर है. ठीक है. तो शिवम अगर रजिस्टर्ड हो जाता है उस कंपनी में तो उसको उसका नाम लिखा रहेगा, शिवम का नाम लिखा रहेगा कि शिवम कुमार डिबेंचर फॉर 5 years विथ इंटरेस्ट, विथ फिक्स इंटरेस्ट 5%. तो केवल शिवम को ही डिबेंचर का पैसा, डिविडेंड जो है वो मिलेगा. केवल शिवम को डिबेंचर्स का पैसा मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा.
ठीक है, कंपनी किसी और को नहीं देगी। तो इफ अ पर्टिकुलर नेम इज रिटेन ऑन द डिबेंचर, ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है, एक दूसरा होता है बियरर। बियरर, दोज हु बियर द डिबेंचर, दोज हु कैरी द डिबेंचर्स, automatically they will become the debenture holder. They will become the debenture holder. They will get the part of the profit of the company. जैसे सुनो, इसमें क्या होता है, उस पेपर में नाम मेंशन नहीं होता है कि ये शिवम का ही है, नाम मेंशन नहीं होगा। ठीक है, विदाउट नेम होगा, केवल लिखा हुआ होगा डिबेंचर फॉर 5 years, डिबेंचर फॉर 5 years, फिक्स इंटरेस्ट 5%, fixed interest 5%. Name of particular debenture holder is not given. In this situation, one debenture holder can sell his debenture to another person. शिवम जो है उसका नाम लिखा हुआ नहीं है, तो वो सेल कर सकता है इसको रवि भूषण को, रवि जो है वो सेल कर सकता है अंशुल को, अंशुल जो है वो आसित को सेल कर सकता है। तो उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं होता है। So without a name, when debenture is issued to the person, that person can transfer his debenture to somebody else, and now that another person will carry the debenture, and that another person will get the profits or interest with a 5%. That is called the bearer debenture holder. वो बियरर डिबेंचर हो जाएगा। जिसके हाथ में वो डिबेंचर का पेपर आएगा वो जाकर के कंपनी में शो कर देगा कि भाई ये मेरे पास है, कंपनी उसको 5% के रेट से इंटरेस्ट चुका देगी। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बियरर, ये हो गया बियरर। ये ऐसा ही होता है जो चेक है, चेक ऐसे मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि उसमें मैंने अकाउंट पे का सिंबल नहीं बनाया है, अकाउंट पे का सिंबल नहीं बनाया है। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया कि पे टू ऋषभ, पे टू ऋषभ, मेरा चेक है वो, मैंने ऋषभ के नाम से वो चेक निकाल दिया। ऋषभ उसको ले जा करके बैंक में पैसे निकाल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऋषभ किसी और को दे दे वो पैसा, तो जो उस चेक को बियर करेगा उसी को वो बैंक पैसा दे देगा। ठीक है, तो बियरर डिबेंचर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। सचिन आवाज आ रही है तुम्हारे घर से? हाँ हाँ मैम, अगर बाई चांस ये डिवेंचर अगर हम है वो प्रॉफिट सॉरी वो हम इन्वेस्ट किए 5 ईयर के बाद, और 5 ईयर से पहले ही अगर मेरा डेथ हो जाता है, तो वो जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट वापस मिलेगा वो मेरे फैमिली को मिलेगा कि वो फिर वो कंपनी ही रख लेगा? नहीं नहीं, देखो डिवेंचर में इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती हूँ कि इसमें अगर डेथ हो जाता है तो वो किसको मिलेगा, उसमें नॉमिनी होते हैं कि नहीं, उसमें जरूर कुछ ऐसा प्रोविजन होता होगा कि अगर उसका डेथ हो जाता मैम है तो नॉमिनी को दिया जाता है मैम। हाँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन होगा, क्योंकि अगर वो 5% का इंटरेस्ट रेट उसको देना है तो कंपनी उसको अपने पास नहीं रखेगी, वो डिबेंचर है। ठीक है, वो प्रॉमिसरी नोट है, वो प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उसको पे करना है, पे बैक करना है, तो वो जरूर उसके नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज द कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको कि चेंज कर सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। उसमें लिखा हुआ होता है कि 5 ईयर के लिए तुमने डिबेंचर खरीदा है, बाई किया है। ठीक है, 5 ईयर के लिए तुमने जब बाई किया तो उसी समय परचेज करते समय लिखा हुआ होता है, तुम लोग कभी देखना उसमें गूगल पे, ऑन द सेम paper of debenture it is mentioned that it is a convertible debenture. Convertible debenture, what is mentioned? Convertible debenture, what is mentioned? And when time gets mature after the 5 year, you can convert your debenture into equity share. मतलब 5 साल तक के 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 साल जैसे मैच्योरिटी हो जाता है, 5 ईयर कंप्लीट होता है, तो 5 ईयर के बाद तुम अगर उसको चाहो तो
नहीं चाहोगे डिबेंचर ही होगा. अगर तुम चाहते हो तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. नाउ you will be entitled to get the dividend when company gets profit. You have to run into losses if company is in loss. You will not get anything in return if you are converting your debentures in form of equity share. It means all rules and regulations will be executed in case of conversion of debenture into equity share. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो बेनिफिट्स मिलते हैं या जो लॉसेस होते हैं वो तुमको होने लगेगा 5 साल के बाद, क्योंकि तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट, then on that paper it is mentioned that it is convertible debenture. It is convertible debentures. वो convertible है. हाँ, अच्छा, फिर ये हो गया. और एक नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? नॉन convertible debentures are those which cannot be converted into equity share. It will be only simple debenture. It cannot be converted into equity share. ठीक है. तो वो तुम खरीदते समय ही बताया जाता है, खरीदते समय ही कहा जाता है कि 5 साल तक के लिए डिबेंचर ये है, लेकिन 5 साल के बाद मैं शायद इसको बेचना चाहूंगा. तो जैसे ही तुमसे ये कंपनी सुनती है वो मेंशन कर देती है कि इट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर. इट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर. ठीक है. नॉन कन्वर्टेबल है तो उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा. नॉन कन्वर्टेबल है देन नथिंग इज मेंशन ऑन दैट पेपर. ओके. Last is first and second. First debenture holder will get their dividend before the second debenture holder. First and second, जैसे secured और unsecured में होता है कि first of all secured debenture holder will get their dividend before the unsecured debenture holder. Similarly, first debenture holder will get their dividend, will get their interest before the second debenture holders. तो पहले फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो सेकंड डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा. देखो, debentures that are repaid before other debentures are repaid are known as first debentures. The second debentures are those which are paid after the first debentures have been paid back. So these are the types of the debentures. These are the types of the debentures. Let's see one more thing, children. सबसे पहले तुम लोग एक बात को जानो. Debentures और ये bonds. Some people gets confused with the term bonds and debentures. उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, जो लोग कभी कॉमर्स नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एग्जैक्टली सेम चीज हो सकता है. They can use the term interchangeably. They can tell it bonds, they can tell it debentures. Layman के लिए, for layman, bonds and debentures are the same thing. But for the commerce student, these two are totally different. बहुत से सेंस में बॉन्ड्स डिबेंचर्स सेम है, बहुत से सेंस में बॉन्ड्स डिबेंचर्स डिफरेंट होता है. वो मैं अभी बताने जा रही हूँ, तुम लोग उसको पहले ध्यान से सुन लो. देखो, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. शेयर का मतलब होता है, एकदम ध्यान से सुनो, शेयर मीन्स यू आर बिकमिंग अ ओनर ऑफ दैट कंपनी. बिकॉज शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा. शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा. पिज्जा का बहुत बड़ा बिग साइज है, ठीक है, बिग साइज है पिज्जा का. मैंने उसको 5-6 हिस्से में, जो ऑलरेडी वो आता है, ट्रायंगुलर शेप में आता है, जितने लोग बैठे हैं उसको मैंने बांट दिया. थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा मैं लेती हूँ. हम लोगों ने बांट दिया. जिसके हिस्से जाएगा उसी में से खाएगा ना, उसी में से खाएगा वो. ठीक है. वो अपना हिस्सा दूसरे को नहीं देगा, ऐसा होता है. लेकिन वो अपना हिस्सा किसी को दे भी सकता है, अपना वो शेयर किसी को दे भी सकता है. पेरेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम लोग खा लो मेरा हिस्सा. ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है. ठीक है. तो शेयर्स आर जस्ट लाइक पिज्जा. शेयर्स आर जस्ट लाइक पिज्जा. ठीक है. तो कंपनी का जितना भी पैसा है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ को वो 1-1 करोड़ में बांट देती है, 1-1 करोड़ में बांट देती है. तो कोई 1 करोड़ पैसा लगाया, दूसरा आदमी 1 करोड़ और पैसा लगाया,
तीसरा आदमी 1 करोड़ और पैसा लगाया, तो पीपल हु आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन दैट कंपनी, they will become the owner of that company. They will become the owner of that company. But when company gets profit, out of that profit, shareholder will get their share, that is called the dividend. If company gets losses, if company faces the situation of extreme loss, then that shareholder will not get any amount of money. That is the prime feature of the share. That is the prime feature of the share. ठीक है, शेयर में तुम जितना पैसा लगाते हो उतने के तुम मालिक बन जाते हो। सब तक आवाज आ रही है मेरी? सब तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर? Yes, ma'am. मैम मैम यस मैम सचिन, हाँ तो ठीक है। हाँ तो जितना का Yes, पैसा ma'am. तुम लगाओगे, हाँ जितना का पैसा तुम लगाओगे उतने के तुम मालिक बन गए। ठीक है, अब क्योंकि तुम शेयर होल्डर हो, तुम मालिक हो, पूरे नहीं, जितना तुमने पैसा लगाया उतने हिस्से के तुम उस कंपनी के ओनर हो गए, तो तुम्हें वोटिंग राइट दिया जाएगा। यू विल गेट वोटिंग राइट। किस लिए भाई, किस लिए वोटिंग दोगे? मंत्री चुनने के लिए, नेता चुनने के लिए? बिल्कुल नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर कौन बनेंगे? सचिन बनेगा कि शिवम बनेगा कि उज्जवल बनेगा कि उत्कर्ष बनेगा कि सृजा बनेगी कि ये क्या कहते रितिका बनेगी? कौन बनेगा? तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल कास्ट देयर वोट। ठीक है, कंपनी का कोई भी डिसीजन होगा कि नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है कि नहीं, तो इन ऑल दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शेयर गेट देयर वोटिंग राइट। ठीक है, तो भाई बेचारे लोग कष्ट भी तो सहते हैं, बेचारे लोग कष्ट भी तो सहते हैं। कष्ट सहते हैं कि नहीं? कब कष्ट सहते हैं? कब कष्ट सहते हैं? लॉस में लॉस में। हाँ, लॉस में कष्ट कहते हैं, तो इसलिए उनको वोटिंग राइट दिया जाता है। ठीक है, ये शेयर होल्डर हो गए। लेकिन शेयर होल्डर में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स फेस एक्सट्रीम और वेरी हाई रिस्क। दे फेस वेरी हाई रिस्क, क्योंकि जब लॉस होता है तो उनको एक भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे, अगर थोड़ा बहुत पैसे होते हैं तो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफर किया जाता है पहले पैसा देने के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट देयर मनी बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। Before the equity shareholder, preference shareholder will get their money. But these two people, equity shareholder and preference shareholder, both will not get money in case of losses. In case of losses. लेकिन थोड़ा बहुत कंपनी को अगर प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, तो थोड़े प्रॉफिट में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। ये स्टोरी है इक्विटी शेयर्स का, ये स्टोरी है शेयर्स का। ठीक है, नाउ कम टू द डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स नेवर फेस प्रॉब्लम। डिबेंचर होल्डर्स नेवर problem. Why? Because in case of losses, they get their dividend, they get their profit, they get their money, so they do not have to face any kind of losses. ठीक है, लेकिन कंपनी को अगर बहुत लॉस होता है ना, तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को लॉस होता है, लेकिन सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को लॉस नहीं होगा, उनको लॉस नहीं होगा। Why? Because company will sell its assets, machinery, raw material, land, factory building. Company will set its asset and then it will give money to the secured debenture holders. ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन भाई डिबेंचर, अच्छा जब प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है, तो डिबेंचर होल्डर को बहुत पैसा थोड़ी मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को बहुत पैसा नहीं मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा उसको, फिक्स्ड मिलेगा। लेकिन शेयर होल्डर बहुत मिलेगा कि नहीं?
शेयर Yes, ma'am. होल्डर को तो बहुत मिल जाएगा, है ना। जितना चलो प्रॉफिट अब उतना। हम लोग, हाँ हाँ ठीक है, चलो गुड। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन bonds and debentures. As a common student, you have to interrupt if people talks about bonds and debentures, if they are misguided, if they are misleaded about these two topics, you have to interrupt. तब तुम बताओगे कि नहीं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऐसे होते हैं, जो आप बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, सिमिलर क्या है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, सिमिलरिटी क्या है। In both the cases, in the case of bonds and debentures, interest rate is given. Fixed interest rate is given. Fixed interest rate is given in both the condition. Bonds holders and debentures holders, both people will get fixed interest rate. ठीक है। Secondly, fixed time period is there. फिक्स टाइम पीरियड 5 साल तक के लिए, 7 साल तक के लिए, बॉन्ड होल्डर डिबेंचर होल्डर दोनों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलते हैं और दोनों को फिक्स टाइमिंग भी होता है। ठीक है, अच्छा दोनों को जो इंटरेस्ट होगा या तो एनुअली मिलेगा एक बार, साल में एक बार, या इंस्टॉलमेंट में, या क्यूमुलेटिव भी वो अपने इंटरेस्ट को ले सकते हैं। ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का सिमिलैरिटी हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड, बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड। बेस्ट एग्जांपल हाउसिंग लोन, बेस्ट एग्जांपल इज हाउसिंग लोन। जैसे जब हम लोग हाउसिंग लोन बैंक से खरीदते हैं, लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो हमारे घर को गिरवी रख लेता है बैंक, पता है कि नहीं। हमारे घर का ओरिजिनल पेपर बैंक के पास Yes, रहता है, ma'am. हमारे घर को वो मॉर्टगेज रख लेता है। ठीक है, और जब अगर हम बैंक का कर्जा नहीं चुका पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक हमारे घर को बेच करके अपना पैसा वसूल लेगा। तो बॉन्ड जो हुआ, हाँ जो बॉन्ड हुआ, बैंक तो सिक्योर्ड हो गया ना, बैंक सिक्योर्ड हो गया। तो हाउसिंग लोन और द होम लोन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स हो गया। ठीक है, बट डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोथ, डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ, बट bonds are always secured, bonds are always secured। तो यहाँ आकर डिफरेंट तो हो गया, हाँ यहाँ आकर के डिफरेंट हो गया दोनों ना। Yes, ma'am. अच्छा अब क्या है, बॉन्ड्स में रिस्क नहीं है, देयर इज नो रिस्क इन बॉन्ड, बट इन डिबेंचर्स देयर आर सम रिस्क्स, देयर आर सम रिस्क्स। ठीक है, तीसरी बात, बॉन्ड्स कभी कन्वर्टेड नहीं होते हैं, बॉन्ड्स कभी भी कन्वर्टेड नहीं होते हैं। बॉन्ड्स को ना हम इक्विटी शेयर में चेंज कर सकते हैं, ना डिबेंचर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है, किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है ना, इसलिए मैं देख रही किसके घर से बहुत आवाज आ रही है। भाई तुम्हारे घर की बात मैं सुन लेती हूँ ना। चलो अब फिर हाँ देखो, बॉन्ड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, पढ़ा ना अभी हम लोगों ने। तो बॉन्ड्स कैन नॉट बी बॉन्ड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बॉन्ड्स और डिबेंचर का। अच्छा, बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसको इशू करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर होते हैं वो प्राइवेट कंपनी ही इशू करते हैं। ध्यान से सुनो, डिबेंचर्स आर इश्यूड मेनली बाय द प्राइवेट कंपनी, debentures are issued mainly by the private company, but bonds are issued by financial institutions, government organization, government भी इसको इशू करती है। ध्यान से सुनो अच्छी तरह से, bonds are issued by government organization, bonds can be issued by private company, bonds can be issued by financial institutions, but debentures are mainly issued by whom? By प्राइवेट कंपनी।
by private company. Clear to all? Clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, इतना तो ma'am. हो गया. अच्छा, और शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस तुम लोग आप अपने से कुछ कुछ बता सकते हो ना. डिबेंचर और शेयर्स का डिफरेंस कल मैंने कैमरा शेयर करके बताया भी था ना कि बॉन्ड डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस होता है. मैंने बताया था लेकिन भेजा नहीं है मैंने. हाँ बताए थे. तो हाँ, तो आज मैं डिबेंचर और ये शेयर्स का डिफरेंस मैं भेज दूंगी, तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना. ठीक है. अच्छा बताओ तो पहले ऑफ ऑल बताओ विच वन. हाँ क्या चलो बताओ तो इन केस ऑफ कंट्रोल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स. मैं टॉपिक भेज दूंगी लेकिन तुम लोग जरा ऐसे ही बताओ तो. Shareholders have voting right. Yes, Equity share में shareholders have decision voting right, making, whereas the voting venture right holders do not have और any डिसीजन voting. मेकिंग होगा. वाह वेरी गुड वेरी गुड. ये किसने आंसर किया बॉयज में? किसकी आवाज? उत्कर्ष की. Yes, ma'am. चलो ठीक है वेरी गुड. अच्छा अब बताओ तो इन केस ऑफ रिस्क शेयर और डिबेंचर में विच वन इज मोर रिस्की? Debentures Shareholder. are more riskier Shareholder than are more debentures. risky. Shareholders are more riskier. हाँ शेयर होल्डर्स आर मोर दे हैव टू फेस रिस्क. चलो ठीक है वेरी गुड. अब हमको लगता है तुम लोग इसको समझ गए ना. तुम लोग इसको Yes, समझ ma'am. गए तो मैं आज इसको भेज दूंगी. अच्छा अच्छा नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इज जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. बहुत टफ नहीं है. एक दिया हुआ है ये कॉमर्शियल बैंक. वन टॉपिक इज गिवन कॉमर्शियल बैंक. ये केवल बोर्ड में तुम लोग उसको सुनते जाओ. 3 मिनट केवल बच रहे हैं. बहुत सिंपल है. जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक जैसे शेयर से पैसा आ गया कंपनी के पास, डिबेंचर से पैसा आ गया कंपनी के पास. ठीक है. अब भाई अगर कंपनी शेयर नहीं बेचना चाहती है, कंपनी किसी पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाहती है, तो कंपनी किसके पास जाती है? ऑब्वियसली कंपनी गोज टू बैंक. कंपनी गोज टू कॉमर्शियल बैंक है ना. तो इसके बारे में ऑलरेडी जान रहे होंगे कि कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म. कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है. तो ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है. कॉमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट पीरियड्स. बहुत तरह के टाइम के लिए, बहुत तरह के पर्पसेस के लिए कंपनी लोन ले सकती है. जमीन खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए. फॉर एवरी purpose and for every type of time period company can get the money from the commercial bank. ठीक है. इसका मेरिट क्या है? सबसे पहला इसका मेरिट है कि जब भी तुम्हारी कंपनी को पैसे चाहिए होंगे, बैंक हाजिर है. बैंक तुम्हारे सामने अवेलेबल है. इनफैक्ट बैंक विल इनवाइट यू टू गेट द लोन. बैंक तुम्हें बुलाएगा. अभी देखो कोरोना के समय में तो बहुत सा कंसेशन भी दिया गया है ना. ये मीडियम स्केल जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और माइक्रो जो बिजनेस है, माइक्रो इंडस्ट्री है, उनको बहुत तरह का फैसिलिटी दिया गया, बहुत तरह का कंसेशन दिया गया है. तो फॉर एवरी पर्पस, फॉर एवरी टाइम कमर्शियल बैंक्स आर अवेलेबल टू गिव द लोन टू द कंपनी. ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा मेरिट है. इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है. ठीक है. डिबेंचर के बारे में मुझे बहुत बताना था, शेयर के बारे में मुझे बहुत बताना था, कॉमर्शियल बैंक के बारे में मुझे बहुत नहीं बताना है. हाँ, the banks keep the information of borrower confidential and the business can maintain its secrecy. बैंक जो है वो जिसको लोन दे रहा होता है, कितना लोन दे रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट है, नेचर ऑफ फर्म, ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद ही, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही बैंक जो है वो कंपनी को लोन एक्सटेंड करेगा. ठीक है. तो बैंक्स कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल.
अबाउट द बोरोवर, कौन सी कंपनी ने कितने पैसे लिए, कितना इंटरेस्ट रेट है, ये बैंक कॉन्फिडेंशियल रखता है। ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा इसमें ये खर्चीला नहीं है, बैंक बहुत आराम से लोन दे देते हैं। हाँ, सिक्योरिटी लेंगे, कोलैटरल लेंगे, लेकिन बैंक को लोन देने के लिए बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस नहीं छपवाना पड़ता है। बैंक के पास तुम जाओगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे आफ्टर गिविंग कोलैटरल और द सिक्योरिटी। तो बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इसका मेरिट्स। अच्छा, अब मैं नया टॉपिक पर शुरू नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। एनी क्वेश्चन which you would like to ask? Are you preparing your notes? Are you Yes, maintaining ma'am. your notes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नोट्स बनाना। और भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब क्लास 12 के बाद दोगे ना, ये सारी पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, ये सारी पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। इसे नोट्स बना करके उसको रटते भी जाओ, समझते भी जाओ, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते जाओ। अब तुम लोग क्लास 11th में आ गए हो, यू ऑल आर ग्रोन अप चाइल्ड। वो सब लोग अब बच्चे नहीं हो। 9th मैडम कैसे आए, मैडम क्या करें, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब तुम लोग मैच्योर हो गए हो, अपना छोटा मोटा डिसीजन खुद लो। नोट्स डायरी में बनाना है, रजिस्टर में बनाना है, कॉपी में बनाना है, मैडम सुबह लिखे कि शाम लिखे, ये अपने से डिसाइड कर लो। नाउ यू ऑल आर क्लास 11, अब तुम लोग क्लास 11th में आ गए, छोटे क्लास में थोड़ी हो। इसके बाद तुम लोग क्लास 12th में तुम लोग फिर चले जाओ कॉलेज में, है ना। ठीक है, चलो, ओके, बाय Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Have a great day today. बाय बाय Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am.